ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਖਾਰ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਮਿਟੇ ਕਲੇਸੋ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਮਹਿ ਪਰਵੇਸੋ। ਖਾਰ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਮਿਟੇ ਕਲੇਸੋ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਮਹਿ ਪਰਵੇਸੋ। ਉਚਰੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਖ ਬਾਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੀ। ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਰਸ ਮਹਾ ਆਨੰਦ। ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੇ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਦ ਖੋਏ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਕਿਲ ਵਿਖ ਸਭ ਧੋਏ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲੋ। ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਸਾਦਰ ਵਾਲੋਂ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲੋ। ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਸਾਦਰ ਵਾਲੋਂ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਜੇ ਮੁਖ ਪਾਂਚੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ। ਤੇ ਮੁਖ ਦੇਖਤ ਲੂਕਟ ਲਾਏ। ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਜੋਗੁਣੀ ਭੋਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੇ ਮੁਖ ਪਾਂਚੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ। तेहि मुख देखत लूकट लाए।
ਜਿਸ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਸਰਬ ਪਦਾਰਥ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਘਿਰਤ ਖੰਡ ਸਹਿਤ ਖਾਦੇ ਸੀ, ਤਿਸ ਮੁਖ ਨੂੰ ਸਰਬ ਦੇ ਸਰਬਗੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਜੁਲਤ ਅਗਨੀ ਦੇ ਮੁਆਤੇ ਲਾਬੂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਜੁਲਤ ਅਗਨੀ ਦੇ ਲਾਂਬੂ ਲਾਹ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਮੁਖ ਨੇ ਕੀ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਰਸ ਭੋਗੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੁਖ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਾਟੋ ਮੇਰਾ, ਅਗਨ ਦਹੈ ਅਰ ਗਰਭ ਵਸੇਰਾ। हे ਰਾਮ ਰਾਏ, ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਕੱਟੋ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਦੱਸ। ਭਗਤ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਨੀ ਜਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਮਿਰਤ ਰੂਪੀ ਅਗਨੀ ਜਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਦੋ ਦੁੱਖ ਕਹੇ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ, ਤਦ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ। ਜੋ ਕਹੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਇਹ ਭੈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਇਆ ਬੇਗੂਤੀ ਬਹੁ ਬਿਦ ਪਾਤੀ, ਕੋ ਜਾਰੇ ਕੋ ਗੱਡ ਲੈ ਮਾਟੀ। ਦੇਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਸੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਜਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਤੂੰ ਮੰਗ ਲੈ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਮੰਗ ਲੈ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਘਰ ਚਰਨ ਦਿਖਾਵੋ, ਪਾਛੈ ਤੇ ਜਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਠਾਵੋ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਗਵਾਨ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਦਿਖਾਵੋ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਚਰਨ ਦੇਖ ਕੇ ਜਮਾਂ ਤੇ ਭੈ ਤੋਂ ਤੂੰ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਰਨ ਦਿਖਾਵਣੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਮ ਨੂੰ ਧਰਮ ਰਾਓ ਹੈ, ਜਮ ਜੋ ਧਰਮ ਰਾਓ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ। ਚਰਨ ਦਿਖਾਵਣੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਜਮ ਜੋ ਧਰਮ ਰਾਓ ਹੈ, ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭੇਜਦੇ ਹੋ। ਜਮ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭੇਜੋ, ਜਬ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਕੈਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕੈਸੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਭਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਵਾਲਾ ਰਚਣਹਾਰ ਮਾਲਕ। ਐਸੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਦਿਖਾ। ਜਦੋਂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦ੍ਰਿੜ, ਫਿਰ ਜਮ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਜਮ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਧਿਆਨ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਧਿਆਨ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਜਪਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਿਤ ਦਾ ਨੇਮੀ, ਤੇ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪੇ ਪਾਵਕ ਆਪੇ ਪਵਨਾ, ਜਾਰੈ ਖਸਮ ਤਾ ਰਾਖੈ ਕਵਨਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੀਪ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਵਾ ਗਣਕਾ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਜੋ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਸੀ। ਉਹ ਵੇਸ਼ਵਾ
ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਵਕਤ ਉੱਚੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬੋਲ ਕੇ ਬੜੇ ਮਗਜ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਿਆ ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੀ ਹੋਈ ਬੇਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਬ ਝੁੱਗੀ ਜਲਣ ਲੱਗੀ। ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਭਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੇਵਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਆਮੀ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਨਿਗਸੋ ਛੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਛੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਬਚਨ ਕਹੇ ਉਦੋਂ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਟਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ, ਪਵਨ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਰਵਰੂਪ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪੇ ਪਾਵਕ ਆਪੇ ਪਵਨਾ, ਜਿਆਦਾ ਖਸਮ ਤਾਂ ਰਾਖੈ ਕਬਨਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੇਵਕੋ ਆਪ ਹੀ ਅਗਨੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, आप ही पवन है। जब मालिक ही जारेगा, जब मालिक ही मारे, फिर रखेगा कौन? फिर कोई नहीं रख सकता। भगत जी ने बचन कहे, सेवक बाहर खलो गए। बड़िया बेनतियां सेवक कर रखियां सी, पर भगत जी ने किसी दी एक ना मन्नी। फिर बाणी उचार रहे ने, बचन कह रहे ने, राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चित रहया समाए। ए भाई, राम नू जपदिया होया, परमेश्वर दी याद विच जुड़िया होया, ये शरीर तन जल क्यों ना जावे। बेशक जल जावे ये तन, मैनू कोई परवाह नहीं। मेरा चित तां राम नाम विच समाया होया, मैं जपदा हाँ उस वाहिगुरु परमेश्वर नू जो जगत दा मालिक है। काको जरै काहे होए खान, नट वट खेलै सारंग पान। भगत जी कहन लगे, जब सर्वरूप ओही है, तब किस दा जलदा है, किस दा नुकसान हुंदा है। जैसे नट अनेक सवांग करके खेलदा है, नट जिवें बाजीगर, बाजीगर डंक बजाई, सब खलक तमाशे आई। ਤੇ ਸਰਬਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰੰਗ ਨਾਮ ਧਨੁਖ ਦੇ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚੋਜ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਸਦੇ ਕਹਿਣੇ ਕਰਕੇ ਕभी ਗੁਲੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦਾ, ਐਸੇ ਹੀ ਸਭ ਚੜਾਓ ਉਤਰਾਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ। ਕਉ ਕਬੀਰ ਅਖਰ ਦੋਏ ਭਾਖ, ਹੋਏਗਾ ਖਸਮ ਤਾਂ ਲੇਗਾ ਰਾਖ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਅਖਰ ਦੋਏ ਭਾਖ, ਹੋਏਗਾ ਖਸਮ ਤਾਂ ਲਏਗਾ ਰਾਖ। ਦੋ ਅੱਖਰ ਜੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ, इसनू उचार देखा, जप देखा। जे कोई हमारा खसम होवेगा, क्योंकि खसम वाला कौन है? जिसका मालिक समर्थ, जिसने एक दी शरण लै ली कि मेरा खसम मेरा सतगुरु गरीब नवाज है। मुर्शद कामल है, मुरीद अमल ते रब शामिल। जो मुर्शद वाला है, गुरु वाला है,
जो किसी गुरु पीर दे बने ही नहीं, उन्होंने घाटा ही घाटा। जो मुर्शद वाले ने समर्थ गुरु दे बने ने खसम वाले ने, सो रख लवेगा। जे कोई साडा खसम होवेगा रख लवेगा। जो ये बचन कहे भगत कबीर जी महाराज जी ने शब्द उचारे, अग्नि शांत हो गई, बुझ गई, क्योंकि वो मालिक कैसा है, बड़ा बेअंत, बड़ा दयालु ते कृपालु है। क्योंकि वो दीन दुनिया का मालिक, वो भगतां दा प्यारा है। वो अपने जना की आप पैज प्रतिज्ञा रखता है। उस वेशवा के घर नूं भी अग लग गई सी, सुते ही तरलोकी दे मालिक ने, क्योंकि उस मालिक नूं फिर बड़ा दुख हुंदा है। वेशवा ने कुछ तो कुछ कहा कि आ तेरा खसम और मेरा खसम वो मालिक है, क्योंकि वो बख्शीशां दा दाता है, अपने जन की आप रखता है। जो उसने लवाई सी अग्नि, पर वो परमेश्वर ने आप की बेहोद बना दी। फिर भुल्लां गलतियां मन्ने, भगत कबीर जी महाराज जी तो मेरे तो वड्डी भुल हो गई, मैं पापण ने अवज्ञा की, बख्श लवो। कहो कबीर अखर दोए भाख, होएगा खसम ता लेगा। वो मालिक ऐसा समर्थ है। आद तो सतसंगी जनों अपने भगतां दी जनां दी रखदा आया है, अज भी रखदा। कोई सच्चा भगत बन जावे। गौड़ी कबीर जी दो पद, नाम है जोग ध्यान चित लाया। बिन बैराग ना छूट समाया। परमार्थ की पहली मंजिल बैराग है। बाबा जी ने ये समत देनी, धन धन बाबा आनंद सिंह महाराज जी ने बख्शिशां करनी। पहली मंजिल बैराग, पहल पुरसां वेरा। मन बैराग भया, दर्शन देखने का चाहो, धन सो तेरा था। मन बैरागी है, दर्शन दी अवलाखा है। नाम है जोग ध्यान चित लाया। मैंने जो मार्ग दे ध्यान रूप अंग करके परमेश्वर विच चित नहीं लाया। जे कहे ना ध्यान करने विच कारण की है। बिन बैराग ना छूट समाया। मैं बैराग तो बिना खां, इसी करके मेरे मन से माया नहीं छुटती। कि जब तक माया विच मन लग्या है मनुख दा कोई भी, तब तक ध्यान नहीं होगा। कैसे जीवन होए हमारा, जब ना होए राम नाम आधारा। जब राम नाम का आधार ना होवे, तब साडा जीना किवें होवे, नहीं होगा। नाम तो बिना और जोग आदि साधन ये आपने कीते होवणगे, तिन्हां दा आधार होवेगा। भगत जी कहन लगे, कहो कबीर खोजो असमान। राम समान ना देखो आन। मैं आकाश पर्यंत खोजदा हाँ, आकाश विच जो स्थित लोक ने, तिन्हां विच विचार करके ऐसे मनिया है, मैं जानिया है कि राम दे समान और कोई भी नहीं मनिया। गौड़ी कबीर जी जेह सिर रच रच बांधत पाग। सो सिर चुंच सवारे काग। कोई बांगा पग नूं सवाल सवाल बंधिया करता सी। बड़ा समा ला देना पग बन्नण ते। जिस समय वो मृत्यु होया
ਤਿਸ ਪ੍ਰਥਾਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਹੇ ਸਿਰ ਰਚ ਰਚ ਬਾਂਧ ਤਪਾਗ, ਸੋ ਸਿਰ ਚੁੰਚ ਸਵਾਰਹਿ ਕਾਨ। ਜਿਸ ਸੀਸ ਪਰ ਅਮ ਕਾ ਪੁਰਸ਼, ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰ ਪਰ ਕਾਗ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਕਾਗ ਬੈਠਾ ਦੇਖਿਆ, ਚੁੰਚ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਥੇ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਪਰ ਕਾਗ ਚੁੰਚ ਘਸਾ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਨ ਤਨ ਕੋ ਕਿਆ ਗਰਵਈਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਾਗੇ ਨਾ ਰੜਈਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇਸ ਤਨ ਤੇ ਧਨ ਦਾ ਕਿਆ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਨ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਧਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨੇਚੇ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮਨ ਕਹੇ ਗਰਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਇਹੀ ਹਵਾਲ ਹੋਏਗੇ ਤੇਰੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆ ਮਨਾ ਸਰਵਣ ਕਰ, ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਵੀ ਅਹਿਵਾਲ ਹੋਵਣਗੇ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਐਸਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਕੇ ਪਦੇ 35, ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੁਖ ਮੰਗਤ ਦੁਖ ਆਗੈ ਆਵੈ, ਸੋ ਸੁਖ ਹਮੋ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਪਾਵੈ। ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ जीव और मन एक ही है या दो है। ये कहे जीव संज्ञा है, मधिष्ठान चेतन और अंतःकरण अभ्यास और तीना दा मान जीव है। अंतःकरण विच प्रधान मन है। इस रीति करके मन नूं जीव कहा जाता है। मन का रूप की है सो कहो, प्रकाश रूप रमण रूप परमेश्वर विच निवास विषे असकत होए मन का हुंदा है जां नहीं। चौथे मांगने करके जीव नूं सुख हुंदा है जां नहीं। किरपा करके ये बख्शिश करो, उपदेश दवो। भगत कबीर जी महाराज कहन लगे, सुख मांगत दुख आगा आवे। अज दा मनुख सुख मंगदा है पर दुख आ जाता है। सुख की इच्छा करदा ही रह जाता कि बड़े सुख मंगे सी, दुखों विच आजो बतीत हो रही है। दुख घने मिल रहे ने पर सुख नसीब नहीं हुंदे। ऐसे मनुखों की जगत विच बहु गिणती बहु तादाद है। सुख मांगत दुख आगा आवे। सुख की इच्छा करदा ही रह जाईदा है, दुख पहला आ जाते हैं। सो सुख हम हो सो सुख हम हो ना मांगिया भावें। परलोक विच दुख प्राप्त हुंदा है, सो सुख सानू मंगना नहीं भावता। बेनती कीती, भगत जी आप इससे क्यों पै करदे हो? तुसीं सुख क्यों नहीं मंगदे, क्यों तुसीं डरदे हो? भगत जी कहन लगे,
ਦੇਖਿਆ ਅਜੋਂ ਸੁਰਤ ਸੁਖ ਆਸਾ, कैसे हुई है राजा राम निवासा। विषया विकारां विच अब तक सुष्टु प्रीति है, आत्म सुख की आश करदा, आशा तो आत्म सुख की है पर विषयां विच प्रीति है। फिर प्रकाश रूप राम विच किवें निवास करेगा, किवें होवेगा, नहीं होगा। बेनती की इस विषय सुख विच की दोष है, सारा जगत ये सुख भोगदा है विषयां दे, ऐसा दोष की है विषयां विच। भगत कबीर जी महाराज कहन लगे प्यारिया, इस सुख ते शिव ब्रह्म डराना, सो सुख हम हो साच कर जाना। भगत जी कहन लगे प्यारिया, ये विषया विकारां दा सुख, इस सुख तो शिव जी महाराज ब्रह्मा जी भी डरदे ने। ऐसा ये सुख विषयां दा, इस सुख ते शिव ब्रह्म डराना, शिव जी महाराज ब्रह्मा जी भी डरदे ने। सो सुख हम हो साच कर्म जाना, वो सुख जो असमदादक जीवां ने सच करके जान लिया, इस जगत के जीवां मनुखां ने कि विषय विकारां दा सुख ही सच्चा, भावे कि विषय सुख झूठा है सच्चा नहीं। इस पिछे घने दुख लुके हुंदे ने, जदों मनुख नूं लगदे ने रोंदा है करलाउंदा है, फिर पछताउंदा भी है। वो क्यों डरे ने? ब्रह्मा जी शिव जी महाराज बेनती की भगत जी अगे, भगत जी कहन लगे, सनकादिक नारद मुन सेखा, तिन पीतन मह मन नहीं पेखा। भगत जी कहन लगे सनकादिक नारद मुनि जी, शेष नाग ऋषि जी, जो संपूर्ण मुनि ऋषि ने, क्या मुत कन्याए दिखाउंदे ने, तिन्हां ने भी शरीर ने मन नूं अस्तित्व नहीं देखिया। उन्होंने वेखे सुख दे खुंदियां आत्मा नूं ब्रह्म रूप नहीं देखिया। उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनि, शेष नाग ऋषि वर्गे, सनकादिक नारद मुनि जी वर्गे, तो और तुच्छ जीव कैसे देख सकते हैं? विराग हुए तो बिना परमेश्वर की प्राप्ति कठिन है। भगत जी कहन लगे, जब तक मन बैरागी ही नहीं किवें मिलेगा प्रभु, किवें प्राप्ति उस मालिक तरलोकी दे दी होवेगी, नहीं होती। इस मन को कोई खोजो पाई, तन छूटे मन को समाई। ये भाई इस मन नूं खोजो, ये विचार करो, शरीर दे छुटिया प्राणा दे विजोग होए आत्मा की समाई कित्थे हुंदी है? किसी ने आत्मा नूं ब्रह्म रूप देखिया जानिया भी है। भगत जी फरमाउंदे ने, गुर प्रसादी जय देओ नामा, भगत कै प्रेम इन ही है जाना। गुरु की कृपा, गुरु की बख्शिश से भगत जयदेव महाराज, भगत नामदेव महाराज जी ने भगती विच प्रेम करके इन्होंने जानिया। जयदेव आदका ने कैसे जान लिया? बेनती की, भगत जी कहन लगे, इस मन को नहीं आवन जाना, जिसका परम गया तिन साच पछाना। इस मन नूं आना जाना नहीं, परंतु जिसका भरम चला गया, जिसने नीचे करके जानिया है। इस मन को रूप न रेखिया काई, हुक्मे होया हुक्म बूझ समाई। इस आत्मा का मन का आकार रूप रेखा चिन्ह कोई नहीं,
जीव नाम कैसे होया। बेनती की भगत जी कहन लगे ईश्वर के हुक्म विच होया है। हुक्म बुझ करके ब्रह्म विच समाई हो जाती। असल जो वेद की आग्या है आप नूं परमेश्वर साथ अभेद समझने की आग्या है वेद की। फिर बेनती की भगत जी इस भेद नूं शास्त्र के पंडित तो सब जानते होवणगे जो शास्त्र ज्ञाता पंडित ने कि जीव ब्रह्म रूप है, वो तो सारे जानते नहीं। भगत जी कहन लगे इस मन का कोई जान पियो, यह मन लीन भये सुख दियो। इस आत्मा का कोई भेद जानता भावे कि जीव ब्रह्म रूप है। बेनती की जे यह मन ब्रह्म दे विच मिले तो क्या लाहा मिलता, क्या लाभ होंदा। भगत जी कहन लगे भाई ये आत्मा दे ब्रह्म विच अभेद होए आप नूं सुख स्वरूप प्रकाश स्वरूप मन लैंदा। बेनती की भगत जी जीव शरीरां पलती भिन्न भिन्न है या एक ही है, ये सवाल किया। भगत जी कहन लगे जियो एक अर सगल शरीरा, इस मन को रब रहे कबीरा। जीव एक है बहुड़ो सगल शरीरां विच आकाशवत व्यापिया होया है। जीव तो एक ही है। जीव नाम चेतन सता दा घट मट आदਿਕਾਂ सम शरीर है। बेनती की भगत जी तुसी किस दा भजन करते हो। इस मन को रब रहे कबीरा। भगत जी कहन लगे भाई असी इस आत्मा नूं भज रहे। और भी जो बड़े महात्मा ने सो भी आत्मा स्वरूप का जो जानना यही भजन मनते ने। गौड़ी गुआरे दी एहनस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध भये लव लागे। आत्मा विच अभेद होने नूं जग्यासू क्या करतब करे। बेनती की भगत जी है कि जो अभेद होए ने सो भिन्न हो के सोगवान होंदे नहीं जान। ये भी सवाल किया। भगत कबीर जी महाराज कहन लगे भाई प्यारिया एहनस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध भये लिव लागे। जो दिन रात निरंतर एक नाम परमेश्वर की बंदगी विच भजन विच जागे ने, नाम जपदे ने, नित दे नेमी ने, जिन्हों चाह है जपण का नाम का, लिव बिरती दे लाया कितने बहुत ही मोख भागी हो गए, गिणती तो बाहरे तर गए। साधक सिद्ध सगल मुन हारे, एक नाम कल पत्तर तारे। साधना दे करने वाले जो अणमादाय सिद्धियां दे संयुक्त ने, मननशील संपूर्ण ही साधन करते हुए थकत हो गए, थक गए। परंतु नाम तो बिना संसार समुद्र नहीं तरे। अद्विती एक परमेश्वर का नाम कैसा मनोकामना दे देने नूं कल्प बिरछ है। प्रभु का नाम वाहिगुरु दी बंदगी और जीवां नूं संसार समुद्र तो तारदा है। कल्प संसार से नाम ने ऐसे करके तारे नहीं। जो हर हरे सो होए ना आना, कह कबीर राम नाम पछाना। जो परमेश्वर ने अपनी तरफ हरे ने अपने विच मिला ले मेरे वाहिगुरु, जिन्हां ते बख्शिश होई। आना भिन्न नहीं हो सकते। जो वाहिगुरु नूं पा के आनंदित होए पौने का अधिकार है, सो आनंद से भिन्न सोगवान नहीं होंगे, से सदा ही आत्मानंदी रहते ने। भगत जी कहन लगे मैंने तो मुक्ति का दाता राम नाम ही भाई पहचानिया है। गौड़ी भी सोरठ भी
अरे जी न लाज लाज तोहे नाही, हर तज कत काहू के जाही। भगत कबीर जी महाराज, राम नाम जो मुख साधन है, इनू त्याग के जो देवी देवतियां की उपासना में लग जाते हैं, बड़िया मसाणा नूं पूजते हैं, तिन्हां नूं ओलंबक दिंदे हुए पावन उपदेश दिंदे ने, अरे जी लज लाज तोहे नाही, हर तज कत काहू के जाही। कि लज जीव तेनू लाज नहीं आउंदी, तू वाहे गुरु परमेश्वर नूं छड्ड के, हरि दा भजन बंदगी परमेश्वर दी छड्ड के किस वास्ते किसी दे जांदा, और देवतियां दियां उपासना क्यों करदा। बेनती कीती भगत जी, देवतियां दी उपासना करके क्या हानि है। जग्यासू ने ये बेनती की, महाराज जे देवतियां की उपासना कर लीए फिर हानि की है। भगत कबीर जी फिर कहन लगे, जाको ठाकर ऊंचा होई, सो जन पर कर जात ना सोई। भगत जी कहन लगे, भाई प्यारिया, जिसदा मालक जिसदा ठाकर ऊंचा हुंदा है, सो पुरुष पराए घर जांदा सोभदा नहीं, लज्जा पाउंदा। जे घर विच सब कुछ जिसदा मालक वड्डा, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। क्योंकि मेरा मालक वड्डा है, आप निर्गुण तो सदगुण दे रूप विच आया। 10 ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨੇ ਸਵਾਸਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨਾਇਕ ਨਾਮ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਹਜੂਰ ਨੇ, ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। फिर बेनती की, महाराज वो ऊंचा ठाकर रहिंदा किथे है। भगत जी कहन लगे, सो साहिब रहया भरपूर, सदा संग नाही हर दूर। सो साहिब सब जगह विच पूर्ण हो रहा, सबना दे सदा संग वो खरी दूर नहीं। जेकर तू सुखा की इच्छा करके देवतियां की उपासना करनी चाहता है, इस पर भी भगत जी फिर वचन कहते ने, कवला चरण सरन है जाके, कहो जन का नाही कर ताके। भगत जी कहन लगे, जे तू सुखा की आशा करके देवी देवतियां की उपासना करनी चाहता, तो सोहने बचन कवला चरण सरन है जाके, कहो जन का नाही घर ताके। जिसके चरणा की शरण में लक्ष्मी रहिंदी है, मेरे प्रभु की चरण दासी लक्ष्मी चरणा में रहिंदी। के जन कहो तो किस दे, तिसदे घर विच क्या ना, सब कुछ मेरे वाही गुरु तो मिलेगा। साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा, घर तां तेरा सब किश है, जिस दे सो पावे। वो मालिक दे भंडारे तां भरे पए ने, पर तेरी भावना बन जावे, श्रद्धा बन जावे, ये गुरु नानक दा घर बख्शीशां दा दर है, जिथों कोई खाली जांदा ही नहीं। सब को कहे जास की बाता, सो समरत निज पत है दाता।
जिसकी उत्पत्ति पालना संघार दियां बातां सब कोई करदा है कहंदा है। सो अपना पति समर्थ सबना दा दाता है, वो ऐसा मालिक है। क्योंकि साजण वाला सबना नू है, एक नूर ते सब जग उपजिया। कौन भले को मंदे, वो साजण वाला आप है। सुंदर जगत दी उस दाते ने रचना कीती है, बिच आप बैठा है। ब्रह्मा विष्णु महेश साजण वाला वो आप ही है। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते, विष्णु भगवान जी पालना, शिव जी महाराज जी लै दीवान लाउंदे। पर जिब जिब हुकम तिवह तिवकार, भगत जी कहते ने सब को कहे जास की बाता, सब कोई कहता है। उत्पत्ति पालना संघार दियां बातां तां सब कोई कहता है। सो अपना पति समर्थ सबना दा दाता है। सो समर्थ निज पत है दाता, वो सबना दा दाता, सबना जिया का एक दाता। सो मैं विसर ना जाई, वो सबना दा दाता, सबना दी खबर रखदा है, सबना दी पालना करदा है। उसदे हुक्म तो बिना कुछ भी नहीं हुंदा। कह कबीर पूरन जग सोई, जाके हृदय अवर ना होई। भगत कबीर जी महाराज पावन बचन कहते ने, जगत विच पूਰਨ काम सोई पुरुष है, जिसके हृदय विच परमेश्वर तो बिना और दी उपासना की नहीं होंदी, वो पूਰਨ पुरुष है जगत विच। कह कबीर पूਰਨ जग सोई, वो पूਰਨ है ते हृदय विच परमेश्वर तो बिना और दी उपासना नहीं। जाका हृदय अवद ना कोई, जो एक दा बनिया एक मालिक कैसा है फिर रखदा भी है। जो एक दी शरण लै लवे, एक दा बन जावे, रखण वाला समर्थ मेरा वाहिगुरु रखदा है। एक पुरख पुत्र दे वियोग करके बहुत बदलाव करदा सी, मेरा पुत्र मृत्यु हो गया, अब मैं किवें जीवांगा। बड़ा नेहों प्यार सी पुत्र नाल, क्योंकि माता पिता का बड़ा नेहो हुंदा है पुत्रां नाल। फिर भगत कबीर जी महाराज जी पास संबंधी लैके आए। फिर भगत कबीर जी ने पावन बाणी उचारी, उपदेश दिता, कहन लगे कौन को पूत पिता को काको, कौन मरै को दे संतापो। भगत जी कहन लगे प्यारिया, कौन को पूत पिता को काको, कौन किसी दा पिता है, कौन किसी दा पुत्र है, कौन मरदा, कौन किसी नूं संताप दिंदा। भावे कि सब झूठे ने। कौन मरै को दे संतापो, खार ठग जग को ठगोरी लाई। खार के वियोग कैसे जियो मेरी माई। भगत जी कहन लगे जिवें जगत विच ठग हुंदे, ठगियां मारदे, सब कुछ ठग के लै जांदे। पर भगत जी उस परमेश्वर नूं भी ठग कहंदे कि मेरा वाहिगुरु भी ऐसा ठग है, जिस ठग ने जगत नूं माया रूपी ठग बूटी लाई। क्योंकि वो प्यारे ने अपने मालिक प्रभु दे। हर ठग जग को ठगौरी लाई, अपनी माया ठग बूटी लाई। ने सुखदेव मुनि ने जन्म नहीं लैंदा सी प्रभु, बाहर तेरी माया है। हुण तेरी याद विच जुड़िया खां, जदों जन्म लवांगा तेरी माया व्याप जावेगी, ये नाम नहीं जपण दवे। फिर प्रभु ने वचन किया, जद तक तू समाधि विच नहीं लगेगा तेनू माया नहीं लिया। 12 साल माता दे गर्भ विच रहा सुखदेव मुनि, फिर जन्म लिया।
ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਘਣੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਧਾਰਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਰੋਕ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਓ, ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ, ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਛਲ ਛਿਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਬਚਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਪਗ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਠੱਗ ਜਗ ਕੋ ਠਗੌਰੀ ਲਾਈ। ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਠੱਗ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਲਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਤੇ ਕੈਸੇ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਜਨਮੋਗੇ ਮਰੋਗੇ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੀ ਨੇਚਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਾਇਆਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਰੋਦਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲਤੂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ। ਕੌਣ ਕੋ ਪੁਰਖ ਕੌਣ ਕੀ ਨਾਰੀ, ਇਆ ਤਤ ਲਿਓ ਸਰੀਰ ਵਿਚਾਰੀ। ਕੌਣ ਕਿਸੀ ਦਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਸੀ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਤ ਮਿਥਿਆ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਵਿਚਾਰੀ ਬਣ। ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਪਾਏ ਦਾ ਇਹੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਇਹੀ ਲਾਭ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੱਤ ਦੀ ਨਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਕੋ ਪੁਰਖ ਕੌਣ ਕੀ ਨਾਰੀ, ਇਹ ਤਤ ਲਿਓ ਸਰੀਰ ਵਿਚਾਰੀ। ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਕੌਣ ਕਿਸੀ ਦਾ ਪੁਰਖ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਸਤਰੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਤ ਮਿਥਿਆ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਪਾਏ ਦਾ ਇਹੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਭਗਤ ਜੀ, किसी दी माया रूप ठगोरी गई भी है या नहीं, जो परमेश्वर ने लाई है ठग बूटी माया, किसी दी गई भी है दूर हुई भी है या नहीं। फिर भगत जी कहन लगे, कहो कबीर ठग स्यों मन मानया, गई ठगोरी ठग पहचानया। भगत जी समझाउंदे ने प्यारे हो, ਦਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਠੱਗ ਦੇ ਸਾਥਪਤੀ ਆਇਆ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਜਦ ਠੱਗ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੀ ਉਹ ਠੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਠੱਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ, ਮਨਪਤੀ ਆਇਆ, ਠੱਗ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਤਬ ਤੇਰੀ ਠਗੌਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿੱਚ ਠੱਗ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਨ ਦੇ ਸਾਰ ਠੱਗ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਠਗੌਰੀ ਜਾਣੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਠਗੌਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਠੱਗ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਲਾਭ ਕੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਬ ਮੋਕੋ ਭਏ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਹਾਈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਟ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈ। ਅਬ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਹਾਈ ਹੋਏ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ। ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਮੇਰਾ ਕਟਿਆ ਗਿਆ, परम गति पा ली। फिर बेनती की भगत जी, किस प्रकार सहायता की प्रभु ने तोड़ी दसो। भगत जी कहन लगे, साधु संगत दियो रलाए, पंच दूत ते लियो छड़ाए। क्योंकि तरलोकी दा मालिक मेरा सतगुरु गुरु नानक ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ, ਉਸਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
रब दे जन दी संगत नसीब नहीं। कामादि जो पंच दूत सी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दुख देवन वाले, इन्हां तो छुड़ा लिया मेरे मालिक प्रभु ने। अमृत नाम जपो जप रसना, अमोल दास कर लीनो अपना। अमृत नाम दा जाप रसना करके जप देखा, उस दाते परवरदिगार दी याद विच जुड़दे खां, मुल तो रहत अपना दास मैनू बना लिया। फिर बेनती कीती जग्यासू ने, महाराज साधुआं दी संगत विच तुहानूं फिर की लाहा मिलिया? तुसीं संगत साधुआं दी करन लग गए, ते तुहानूं लाभ की होया, लाहा की मिलिया? भगत कबीर जी महाराज कहन लगे, सतगुर कीनो पर उपकार, काढ़ लीन सागर संसार। सतगुरु ने परि उपकार करके संसार समुद्र तो मैनू कढ़ लिया। बाहां पकड़ गुर काढ़िया सोई उतरिया पार, क्योंकि रब दे जन बड़े दयालु, ब्रह्म ज्ञानी पारि उपकारियो वाक। धन धन भाई सत सिंह महाराज जी ने बख्शिशां करनियां। एक दिन विच कई नगरां विच दीवान लाउणे, रात सब संगतां नूं तारना कि भाई गुरु दे जहाजे चढ़ो, नाम जपो अमृत छको गुरु वाले बनो। कैसियां बख्शीशां दिन रात एक, क्योंकि महात्मा जो रब दे जन परि उपकारी, ब्रह्म ज्ञानी परि उपकारी माखा आप तरे उतारन ही आउंदे। चरण कमल स्यों लागी प्रीत, गोबिंद वसै निता नित चीत। वाहिगुरु दे चरण कमलों दे साथ प्रीति लगी। सच्ची प्रीत ही समर्थ वाहिगुरु नाल पाउणी। प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना, नित ही नित रूप गोबिंद साडे चित विच वसदा। मन अनित दा विचार नहीं सी, गोबिंद चित विच वसदा। बेनती कीती भगत जी, गोबिंद दे चित विच वसन करके फिर तुहानूं की लाहा मिले? जदों परमेश्वर मेरा वाहिगुरु चित विच वसिया ते लाहा की मिलिया? भगत कबीर जी महाराज कहन लगे, माया तपत बुझिया अंगियार, मन संतोख नाम आधार। जिसने हिरदे विच तपत कीती होई सी, तो माया रचित संकल्प विकल्प रूप अग दा पिंड निविरत हो गया। मन विच संतोख प्राप्त होया, मन संतोखी होया, और नाम का आधार किया। जपदे हां परमेश्वर दे नाम। जल तल पूर रहे प्रभ स्वामी, जत पेखो तत अंतर जामी। जल विच थलां विच जो मेरा मालिक मेरा परवरदिगार प्रभु पूरन हो रहा, क्योंकि वह मालिक सर्व व्यापक है। घट घट विच बैठा है, जरे जरे विच रमिया होया वो मालिक है। ऐसा दाता है। इस अंतरजामी नूं मैं जिथे भी देखदा हां उत्थे वो आप ही है। जह जह पेखो तह हजूर, दूध कतहो ना जाए। रब रहिया सरबत्तर मैं मन सदा ते आई। तुहानूं परमेश्वर की भगती किसने रड़ाई, किसने जोड़िया नाम जपण? बेनती की भगत जी। भगत जी कहन लगे, अपनी भगत आप ही दृढ़ाई, पूरब लिखत मिलिया मेरे पाई।
अपनी भगत आप ही रिड़ करवाई है मेरे वाहिगुरु। बेनती की, महापुरखो तुहाडे साथ क्या परमेश्वर की मित्रताई सी? तुहाडे नाल कैसा नेहो सी परमेश्वर का जो तुहानू भगती विच ला दिता? तुहाडा परमेश्वर मित्र सी पूर्व जन्मां दा। इस भगत जी कहन लगे, हे मेरे प्यारे भाई, जो पूर्व जन्मां विच पुण्य कीता लिखिया होया, क्योंकि पुण्य कर्म हुंदे, पुन्नां दे जरिए फिर तरलोकी दे मालक दीयां बख्शीशां मिलदियां। परा पूर्वला कर्म बने आया, वो कर्म अगे आ गया, उस कर्म ने मिला दिता चोजी प्रीतम दे नाल, संगत दे जरिए ब्रह्म सरोतरी ब्रह्म देवती गुरु दे जरिए। क्योंकि किरपा उस दाती परवदगार दी, हर किरपा ते संत भेटिया नानक मन परगाओ। क्योंकि किरपा मेरे वाहे गुरु दी होई, फिर प्रकाश चानन हो गया, रब दा जन्म मिलिया मिलिया होया। भाई साहब दे बचन ने गोया, जे कर अख तेरी भी गोया, जे कर अख तेरी भी रब देखना चाहे, छेती जा तू संतां दे वल ओह रब विखालन। क्योंकि आप मिले हुंदे ने रब दे जन संत, वो मिलावन ही आउंदे ने, क्योंकि वो मालिक ने। कि मेरे भाई पूर्व जन्मां विच पुण्य कीता लिखिया होया सी, क्योंकि आपां लेखे विच विचरदे हां। जो कर्मां दे लेख जगत विच विचरना, जाना, बोलना, विखास धंधे करने, कदम कदम भी लिखिया। पातशाह दे पावन बचन, तिन काल सत नहीं असत नहीं, रे जन लेखै चालै लेखै वैसै लेखै लैंदा साखा। सब कुछ लिखिया है, गिणती मिणती विच है। तो जब आन के मिलिया तब परमेश्वर ने भगती विच ला दिता। फिर बेनती की, जग्यासू ने कहन लगा, महाराज सब जीव फिर पुण्य क्यों नहीं करते? बड़ा जगत संसार जो पता है पुन्ना दे जरिए तरलोकी दे मालक दियां बख्शीशां मिलदियां, ये जन्म सफल है, आत्मानंद मिलता है। फिर सारे ये मनुख जीव पुण्य कर्म क्यों नहीं करते? की कारण है? जो ये वचन कीते भगत जी अगे भगत कबीर जी महाराज कहन लगे, जैस कृपा करे तिस पूरन साज, कबीर को स्वामी गरीब नवाजो। भगत जी ने फिर वचन कहे, प्यारिया जिस कृपा करे तिस पूरन साज, जिस पर मेरा वाहे गुरु तरलोकी दा मालक गुरु नानक आप कृपा करता, तैनू पूरन पुन्ना दी समगरी बख्श दिंदा। क्योंकि आपां कृपा लैनी है उस मालिक तो, निष्कामता पुन्ना दी पूर्णता ही हो जाती है। फिर बेनती की, भगत जी बड़े बड़े लोगों नू दिंदा होवेगा जो बड़े लोग ने। भगत जी कहन लगे, प्यारिया वो मालिक गरीब नवाज है, ये नहीं कोई धनी बड़ा है उसनू दिंदा, उस दे दर इंज नहीं। कबीर को स्वामी गरीब नवाज, वो मेरा मालिक मेरा स्वामी गरीबां नू बड़ियावणे वाला है। गरीब नवाज गुसैया मेरा, माथा छतर तर। आपां भी कृपा मंगीए उस मालिक परवदगार तो कि सतगुरु गरीब नवाज साडे ते भी कृपा कर, नाम दान पुन कर्म सानू भी बख्श, आप मेहर कर। सतगुरु दे उपदेश ते चलीए, गुर शब्दी गुरमतीए बणीए, नाम नू जपीए संग करिए सतपुरुषां दा, अपना अमोलक जन्म सफल हो जावे। हे अच्युत अविनाशी अविनाश, हे पूरन खेसर